आई नो हम ये काफ़ी बार सोचते हैं कि जितना हर्ट किसी एक इंसान ने हमें किया है, क्या उसका एहसास उन्हें कभी होता भी है? एंड द ट्रुथ इज़, मोस्ट पीपल who hurt you sometimes they don't even realize the depth of it. And if you are sitting there waiting for an apology, waiting for that closure, then you are just handing over your peace to somebody who does not even have the capacity to hold it. और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन एंड आई नो व्हाट इट इज लाइक टू वेट फॉर दैट क्लोजर, टू वेट दैट someday maybe somewhere they'll realize it, right? To replay the conversation, hope that they'll get it someday. But let me break it down to you. They don't. Sometimes they don't. Not until life hits them in the same place. So what do you do instead, right? And the best thing you can do is the best revenge, so to say, is you become the best version of yourself, the one that they can never had the access to. Now, number one, emotional maturity and accountability do not go hand in hand. अब अगर किसी इंसान में इमोशनल मैच्योरिटी होती तो वो आपको इतने डीपली हर्ट करते ही नहीं, पहली बात तो. And that one line holds so much truth because emotional maturity is not just about age or experience, it is about self awareness, empathy, and the ability to take responsibility for your actions. But here's the thing, right? A lot of people who've hurt you lack this very awareness in the first place. And I know that all of us are humans, and sometimes we hurt people and people hurt us, and it's just life, you know. However, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार गलती करके भी सुधरना ही नहीं चाहते, and they keep hurting people just to satisfy their ego somehow. You tell somebody that they have hurt you, you tell your friend or whosoever, right? And instead of acknowledging it, they say, तूने भी तो ऐसे ही बोला था, तूने भी तो ये किया था. And now suddenly it is about what you did and not what they did. Or the worse, they pretend like nothing ever happened, and act so oblivious. And when people hurt you and do not even acknowledge this, like nothing ever happened, it speaks volumes about them and not you. उन्हें एम्पैथी से ज़्यादा अपनी इमेज की चिंता होती है, राइट? एंड you are out here expecting depth from a shallow pond. So stop expecting accountability from people who have not even begun to be honest with themselves. Because you do not need their apology to heal. You just need to stop giving them your own energy. Now, number 2, attention is currency. And stop funding their ego. So, जो लोग आपको हर्ट करते हैं, राइट, वो अक्सर आपके अटेंशन पर जिंदा होते हैं. So you need to really starve them of your action. They do not want you. They do not want anything from you. They want the energy that you are giving them. उन्हें वो पावर चाहिए होती है जो मिलती है आपके माइंड में रहने से. आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स, आपके पीस, दैट इज व्हाट दे नीड. उन्हें ये जानना होता है कि क्या वो अभी भी आपको इफेक्ट कर रहे हैं, क्या आप अभी भी उनकी स्टोरीज चेक कर रहे हो, पास्ट को रीप्ले कर रहे हो, एक अपॉलॉजी का वेट कर रहे हो. मैं हमेशा ये बोलती हूँ और मैंने काफ़ी वीडियोस में बोल रखा है कि अटेंशन एक इमोशनल करेंसी है. एवरीबडी इज चेजिंग फॉर योर अटेंशन एट द एंड ऑफ द डे. और जब आप उस इंसान पे स्पेंड करते हो जो कि खुद इमोशनली बैंकरप्ट है, तो आप खुद इमोशनली ब्रोक हो जाते हो. And now, the best thing you can do in this case scenario, right, if nothing, then maintain physical distance. And I cannot emphasize on this enough because the minute you do that, you cutting off their supply of the energy that they get from you. उन्हें आप नहीं चाहिए, उन्हें अपने उस वर्जन की याद आती है जब वो पावरफुल फील करते थे, जब आप अपनी लाइफ में उन्हें जगह देते थे. आपको लगता है कि आप कोल्ड हो गए हो,
बाकी लोगों को लगता है कि ये तो कितनी कोल्ड हो गई, कितना कोल्ड हो गया, बट नहीं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्लेम कर रहे हो। जब आप रिएक्ट नहीं करते हो तो उनका इल्यूजन ब्रेक होता है। वो इम्पोर्टेंस जो उन्होंने अपने लिए आपकी लाइफ में बनाई होती है वो हिल जाती है। ये नार्सिसिस्टिक सप्लाई थ्योरी से भी कनेक्टेड है। इमोशनली मैनिपुलेटिव एंड नार्सिसिस्टिक पीपल बाहर की वैलिडेशन पे जीते हैं। आपकी अटेंशन उनका मिरर बन जाता है। जब वो मिरर हटा दिया जाता है, उनका पूरा इमेज कोलैप्स हो जाती है, राइट? तो अगली बार जब आपको मन करे कि आप उनको टेक्स्ट करो, स्टॉक करो या उनकी बातों पर रिएक्ट करो, तो आप एक बार रुक करके खुद को ये याद दिलाइएगा कि अटेंशन इज अ करेंसी। तो डोंट गो देयर जस्ट टू गेट आउट ब्रोक उस इंसान के लिए जो आपकी वैल्यू भी नहीं अफोर्ड कर सकते, राइट? नाउ नंबर 3, क्लोजर इज नॉट समथिंग यू गेट, इट इज व्हाट यू क्रिएट। नाउ द थिंग इज, हमें लगता है कि क्लोजर वो इंसान हमें देंगे, वो हमें किसी और से मिलता है, कि एक दिन वो वापस आएंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, माफ़ी मांगेंगे एंड देन वी फील बेटर। पर सच ये है कि क्लोजर जो है वो उनके वर्ड्स से नहीं आता, ये आपका एक डिसीजन है, एक कॉन्शियस डिसीजन है। वो मोमेंट जब आप खुद से ये कहते हैं कि बस अब और नहीं, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आप किसी की सॉरी का इंतज़ार नहीं करोगे, किसी की एक्सप्लेनेशन या किसी के मैसेज या क्लैरिटी का वेट नहीं करोगे, राइट? जो शायद कभी आए ही ना। Because I'll tell you one thing, that I have been in the same situation where I wanted this person to realize how badly they've hurt me and what they've done, but did they ever realize it? I don't know. Will they ever? I don't know. But still, मैंने ये डिसाइड किया कि इंतज़ार में सिर्फ एक इंसान सफ़र करता है, वो आप खुद हैं। And I have made this one thing very clear in my life, that I'll never be a victim. So I claimed my power back. And from a metaphysical point of view, ये सब एक वाइब्रेशनल साइकिल है, राइट? जब आप किसी अनरिजॉल्व इमोशन से चिपके रहते हो, तब आप उसी फ्रीक्वेंसी के लूप में फंस कर रह जाते हो। यूनिवर्स उसी पेन को बार बार रिफ्लेक्ट करता है जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी से डिटैच नहीं करते। आई नो इट साउंड्स वेरी हार्श, बट आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स और दिस ग्रेटर कॉन्शियसनेस इन इटसेल्फ इज न्यूट्रल। ये सिर्फ आपके इनर वर्ल्ड को मैग्नीफाई करता है इन दिस आउटर वर्ल्ड। तभी आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। इवन तो सोचने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू रियली फील इट। बट that is the main gist, that whatever is going on in your inner world will be reflected in your outer world. तो जब आप वो इमोशन एक्सेप्ट कर लेते हो, whatever it may be, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, whatever it may be, तब बिना उस पर्सन की अपॉलॉजी के आप उस लूप को तोड़ पाते हो। नाउ नंबर 4, व्हेन यू राइज दे नोटिस। एंड सबसे ज़्यादा आयरनिक बात ये होती है कि जब आप किसी को उतना वैल्यू करते हो या प्यार करते हो कि वो खुद को ही उस लायक नहीं समझते हैं, कि वो नहीं समझते कि वो इतना डिजर्व करते हैं, तब वो आपसे दूर भागने लगते हैं। एंड देयर वाज दिस वन लाइन इन दिस मूवी कॉल्ड द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर, वेयर इन दिस कैरेक्टर सेज दैट पीपल कैन ओनली एक्सेप्ट द लव दे थिंक दे डिजर्व। एंड इट इज सो ट्रू, बिकॉज आप उन्हें टेक्स्ट भेजते हो, उनकी स्टोरी इनडायरेक्टली चेक करते हो। कुछ लोग अपनी वर्ड्स प्रूव करने के लिए अपने आप को ही ओवर कॉम्पनसेट करने लग जाते हैं, बट उस पूरी प्रोसेस में आप खुद से दूर चले जाते हो। और जब आप किसी और के रिएक्शन को अपने वैल्यू का प्रूफ बना देते हो, तब आप उन्हें अपनी पावर दे देते हैं। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप फाइनली डिसाइड कर दें कि यू नो व्हाट, आई एम डन एक्सप्लेनिंग, आई एम डन प्रूविंग, आई एम डन बेगिंग फॉर बेसिक एफर्ट, तभी ऐसा लगता है कि उनको पता चल जाता है कि ये इंसान अब हील करने की तरफ बढ़ रहा है। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना चालू करते हो, तब आप अपने लिए बाउंड्री सेट करते हो। जब आप अपनी एनर्जी को वापस बुलाना शुरू करते हो, उस वक्त
ही दूसरी तरफ उस इंसान को ये फील होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तब तक आप खुद को इतना इवॉल्व कर चुके होते हो कि वो रियलाइजेशन जो उस इंसान को अब हो रही है वो अभी रेलेवेंट ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, राइट? You will have it when you don't want it or you do not need it. So that is that. But what I want you to take away from this point is कि आप ये सुनने के बाद अब ये मत सोचना कि अब मैं इसीलिए बेटर इंसान बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ ताकि वो मुझे नोटिस करे। नो, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट यू टू लुक फॉरवर्ड टू, राइट? सो राइट नाउ योर एम शुड बी, you do not wait, you do not beg, you do not try to decode emotionally unavailable people. Do not fall for that what they could be. See for what they are right now, okay? Take your power back, claim your energy back, and the closure you are seeking is the boundary you have not set yet. और आप इतने रूटेड बन जाओ अपनी पीस के लिए, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दो अपनी पीस को, दैट इवन इफ दे कम बैक विद एन अपॉलजी इट डज नॉट शेक यू। एंड ट्रस्ट मी, they always come back. They do always come back. But by then, you won't even want them. And with that, I'll see you in the next video.